Welcome to this session from Vedantu. We are continuing with our sprint session in your preparation for your second leg of JEE Mains 2019. This is Abhilash here, your master teacher in chemistry at Vedantu, and today what we are going to look at is one of the most important chapters in JEE, right? This is thermodynamics, right? Today what we are going to do is we are quickly going to see some of the questions that have appeared in JEE Mains over past many years, giving a lot of stress on the questions that came in 2019 for sure, and beyond that I have included a few more miscellaneous examples so that we can quickly brush up all the important topics. I mean, whatever is not covered as far as the other questions that have appeared in JEE Mains is concerned. So let's not waste any time and let's right away get into this chapter. This is a decently huge chapter with a lot of formulae where your conceptual understanding has to be really clear if you want to get all the questions right? So let's directly jump into the questions that are there that appeared in your JEE Mains exams. Okay, so the first question here, right? The first question here, the entropy change associated with the conversion of 1 kilogram of ice at 273 Kelvin to water vapor at 383 Kelvin is, right? So this question, first question here, is about entropy change, right? So as far as entropy change, delta S is concerned, what exactly is entropy? Entropy is the measure of randomness in a system, or it is a degree to which you can say that there is chaos in the system, right? So as far as entropy is concerned, this is something that is very crucial to understand spontaneity of a process and stuff via Gibbs energy. So we have questions based on Gibbs energy and all ahead also, right? Here what we are doing is specifically we are calculating the entropy change associated with converting ice that is there at 0 degree C to steam at 383 Kelvin, right? So as far as entropy calculation is concerned, right, there are many type of processes that you come across in thermodynamics. There are many cases that you have to consider as far as entropy change is concerned. What you have to remember is, I'm just quickly going to tell you about the different formulae that are involved. One is if you have ideal gases undergoing a process, you can say that delta S is equal to NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. This is a very general formula that you can use almost anywhere, right? As long as you know the T2 by T1 and V2 by V1. If you don't know it, one way or the other, you will have to come down to this, and if you know it, you can use it, right? But this is obviously not the formula that we are going to use here. So here, what all do we have? As far as this particular question is concerned, you're initially converting ice which is at 0 degree C to water at 0 degree C first. You have seen questions related to heat calculation for this, I'm sure. So after that, you are converting water at 0 degree C to water at 100 degree C. In this process, there is no phase change, right? So, and after that, once again, you do a phase change where you are converting water at 100 degrees C to steam at 100 degrees C. And the last step that you have is, once again, where there is no phase change, you are changing steam at 100 degrees C to 110 degrees C or 383 Kelvin. At each of these places, there would be different formulae that are associated with delta S. So when you have delta S for a phase transformation, what you can say is that remember all of these formulae, these are really, really important, right? So delta S, what you say is equal to delta H by T. At whatever temperature that is happening, you know the most generic formula that you can use for delta S is integral of dq reversible by T. As far as phase change is concerned, you know the temperature doesn't change, so denominator mein jo hai, that comes out because it's a constant, and what you have is integral dq, which turns out to be equal to delta H, because phase transformations happen at constant pressure and constant temperature condition that you are doing. At that point, you can say that heat will be equal to delta H. You know that delta H is equal to heat under constant pressure, right? So delta H is equal to heat under constant pressure, right? So this is one formula that we will definitely have to use. Then another formula that you will need related to delta S when there is no phase change, right? So if you are not looking at an ideal gas, and if you are looking at a liquid or a solid which is changing its temperature from T1 to T2, the formula that you need is Ms ln T2 by T1.
How do you get this formula? Again, dq by t का integration है, dq is ms dt, right? So ms dt by t का integration हो जाएगा, तो you end up getting ms ln t2 by t1. These are the two formulae that we will be using here, right? So as far as the first step of this process is concerned, what exactly is happening? You are converting ice to water, right? So you are given, what all are given here, right? So specific heat capacity of water and steam are given to us, right? This is given in kilojoule per kilogram per Kelvin. Joule per gram will also turn out to be the same, but jo bhi, right? So what you are given is S of water is given, S of, राइट. सो वाटर एंड स्टीम दोनों का हीट कैपेसिटी दिया हुआ है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अदर देन दैट व्हाट एल्स इज गिवन? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एंड डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, राइट. तो ये दोनों फेस चेंज के भी डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है 344 एंड 2491, राइट. सो लेट्स कैलकुलेट डेल्टा एस. अपना स्टेप 1 क्या है? कन्वर्टिंग आइस टू वाटर. तो वहां पे आएगा आपके पास डेल्टा एस 1 विल बी इक्वल टू 344 delta H divided by T, I told you. So what is the temperature where this phase change is happening? 273 Kelvin, right? So this is first part. Then second is when there is no phase change and you are converting water at 0 degree C to water at 100 degree C, second formula or third formula rather, तो ms ln t2 by t1, right? So यहाँ पे mass is like 1 kg and eventually this is normally not the entropy का formula, entropy का unit per se, you can understand, right? But it's irrelevant क्योंकि यहाँ पे we have taken, like the question itself spoke about 1 kilogram, तो automatically what you are getting here is going to be in this kind of a format. Otherwise ideally delta S का entropy का in general unit जो है joule per Kelvin, kilojoule per Kelvin type का ही आना चाहिए. बट यहाँ पे देयर इज दिस किलोग्राम बिकॉज इट वुडंट मेक एनी डिफरेंस हियर. 1 किलोग्राम के लिए ही आप वैसे भी कैलकुलेट कर रहे हो, राइट. नेक्स्ट पार्ट डेल्टा एस 2 व्हेन यू आर कन्वर्टिंग your water at 0 degree C to water at 100 degree C, you will have ms delta T. मास तो 1 ही है, 1 किलोग्राम है, और आपको दिख भी रहा है S जो है उसमें भी पर किलोग्राम के टर्म्स में ही दिया हुआ है. तो यू कैन से दिस विल बी इक्वल टू m इंटू S. m तो 1 ही है, S इंटू ln t2 by t1. तो ln of t2 by t1 will be 373 divided by 273. Now understand that you are given the value of log 373 and log of 273 and also log of 383, right? log कन्वर्ट करना आपको मालूम ही है. log 2.303 टाइम्स log बोल सकते हो आप ln, तो आपको ये ln का वैल्यू मिल जाएगा 2.303 टाइम्स ये log of a minus b टाइप फॉर्मेट आएगा. तो दिस विल बी इक्वल टू log of a by b is log a minus log b, राइट. तो 4.2 इंटू 2.303 इंटू ln of log of 373 minus log of 273. तो ये आपका log of 373 is given as 2.572 minus 2.436. तो इंटू 2.572 माइनस 2.436, राइट. तो ये 0.136 है और ये आपको 4.2 इंटू 2.36 कैलकुलेट हो जाएगा, राइट. थर्ड पार्ट इज डेल्टा एस 3 where once again you are doing a phase transformation, you are converting it into steam. तो वहां पे आएगा once again delta H by T. तो इस बार delta H है आपका 2491 divided by temperature क्या है इस बार 373 Kelvin, right? तो ये 373. This is the third step that is there. Last step that is remaining is delta S4. Once again no phase change, steam at 100 degree C to steam at 110 डिग्री C. तो ये आएगा आपके पास once again m इंटू एस इंटू डेल्टा ms ln t2 by t1. तो ये आपका s दिया हुआ है 2 है और मास तो 1 ही है, तो 2 इंटू 2.303 इंटू log a माइनस log b टाइप्स है. log आपका 2.583 माइनस 2.572. तो ये आएगा आपके पास 0.011 और ये कैलकुलेशन तो हो ही जाएगा. इवेंचुअली ऑन एडिंग ऑल ऑफ दिस यू गेट द वैल्यू टू बी 9.26 विच इज द आंसर विच इज डी. आई होप दिस इज क्लियर. वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फॉर्मूले यू हैव टू रिमेंबर, राइट. दीज प्रोबेबली वुड बी द ओनली फॉर्मूले दैट यू नीड. ये आपका आइडियल गैस के लिए, ये आपका फेज चेंज के टाइम पे है, और ये आपका for a solid or a liquid changing its temperature from T1 to T2. So these three formulae you have to absolutely remember for delta S, right? So I'm going to give you a second.
right? So this is the overall entropy change as far as this particular process is concerned. Let's go to the next question, right? So here, for complete combustion of ethanol, the amount of heat produced as measured in a bomb calorimeter is given as 1364.47 kilojoule per mole at 25 degrees C. Assuming ideality, the enthalpy of combustion for the reaction will be, ठीक है? Now here you have to understand something, that as far as calorimetry is concerned, when you are using a bomb calorimeter, it's a constant volume process that you are undergoing, right? So you are carrying out a constant volume process. Constant volume process में work done will be zero because minus P external dV होता है dW 0 है तो W भी 0 है. तो as far as bomb calorimeter calculation is concerned, work done 0 है तो delta E will be equal to Q, right? So यहाँ पे whenever they speak about bomb calorimeter का reading, they are basically giving you your delta E, right? So heat measured जो है, they said it is 1364, right? तो 1364.47 किलोजूल is what they are saying, right? तो ये अब heat measured है, तो I have to say that this is exothermic, so which means that this has to be taken as negative. तो delta E is basically given as minus 1364.47 kilojoule, right? 47 kilojoule per mole. Which means, what does that tell you? What have they asked you? They have asked you enthalpy of combustion. अब enthalpy of combustion, सारे जितने भी enthalpies हैं, enthalpy of formation, combustion, neutralization, bond enthalpy, all of these you have to remember the definition very clearly. 1 mole का combustion to give you, like full combustion के बाद, to give you the products in their standard states is what you call as your enthalpy of combustion. तो इसी reaction का enthalpy of combustion, enthalpy ही निकालना है हमें. Only thing is that they have given us delta E. So what is the relationship between delta H and delta E? Delta H is equal to delta E plus delta Ng RT. One more important formula that you have to remember, right? तो delta H पूछा हुआ है, delta E मालूम ही है, delta Ng RT. What is delta Ng RT as far as this particular reaction is concerned? Delta Ng is number of moles of gas products माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट्स. यहां पे आपके पास गैस प्रोडक्ट्स क्या है? अब ये टेम्परेचर इज द इंपॉर्टेंट क्रूशियल थिंग हियर. 25 डिग्री सी है, तो इवन इफ दे डिड नॉट गिव यू द स्टेट, ठीक है, इवन इफ दे डिड नॉट टेल यू द स्टेट, विच विल नॉर्मली नॉट हैपन, इवन इफ दे डिड नॉट टेल यू, लुक एट द टेम्परेचर. टेम्परेचर पे वाटर का जो स्टेट है दैट हैज टू बी लिक्विड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इन गैस फेज. तो आपके पास 2 मोल गैस प्रोडक्ट्स हैं और 3 मोल गैस रिएक्टेंट्स थे, राइट? सो द एथेनॉल इज ऑब्वियसली ऑल्सो लिक्विड, राइट? सो आपके पास यहां पे डेल्टा Ng आएगा 2 - 3 विच इज -1. तो ये -1 आपको डालना है. इसका वैल्यू आपको पता ही है, डेल्टा ई का वैल्यू, आर का वैल्यू पता ही है 8.314, टेम्परेचर 298, वैल्यू डालोगे तो आपको इसमें अंदर आंसर मिल जाएगा विच इज इक्वल टू -1366.95 किलोजूल पर मोल, राइट? तो यहाँ पे आंसर इज फर्स्ट वन आपका -1364.47, और ये दिख रहा है बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, ये 8.314 इंटू 298 है, 8.314 इंटू 300 टाइप्स ही हो गया, तो रफली ये 2000 टाइप्स, 2500 टाइप्स, यू नो राइट? आर इज टेकन एज 25/3, तो आपके पास 25/3 इंटू 300 है, तो 2500 जूल निकल के आएगा ये, जो कि 2.5 किलो जूल टाइप्स है. तो 300 केल्विन के आसपास आप डायरेक्टली ये 2.5 ले सकते हो, राइट? तो ये -1364.47 -2.5, तो -1366.9 टाइप्स दिख रहा है आपको. तो दैट इज योर फाइनल आंसर हियर, right? I hope this is clear. So wherever you see bomb calorimeter, remember that it is delta E, and if they are asking about delta H, remember the relationship between delta H and delta E. Let's go to the next question. Next question is, given that carbon in graphite phase plus oxygen giving you CO2, तो ये enthalpy of combustion of carbon दिया हुआ है, ठीक है? Definition: 1 mole of the substance burnt in required amount of oxygen to produce the most stable oxides. In this is what you call as your enthalpy of combustion. तो enthalpy of combustion दिया हुआ है. H2 plus half O2 giving H2, again enthalpy of combustion दिया हुआ है. All the products should be and all the reactants everything should be in their standard state. सब कुछ दिया हुआ है, तो ये भी enthalpy of combustion, ये भी enthalpy of combustion
कंबशन है. थर्ड रिएक्शन इफ यू सी इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ठीक है, 1 मोल मीथेन को बर्न करके CO2 और 2H2 बनाते, तो इसमें, और वो भी स्टैंडर्ड स्टेज में सारी चीजें, तो आपका जो यहां पे एंथैल्पी उल्टे प्रोसेस का होता है उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं वैसे. But yeah, we don't really need to understand that this is enthalpy of combustion right away. वो एक मेथड भी है जिससे आप कर सकते हो, but we don't really speaking in this question at least वो जरूरत नहीं है. See, we know that delta H for a reaction can be written as enthalpy of summation of enthalpy of formation of your products minus summation of enthalpy of formation of your reactants. This is one thing that we can use. अगर डेल्टा HF दिए हुए होते हैं डिफरेंट रिएक्शन में जितने भी चीजें दिख रहे हैं उनके बारे में, तो you could have said that enthalpy of formation of products minus enthalpy of formation of reactants delta H है. Remember one formula. Then another formula that you should remember is enthalpy can be written also as enthalpy of combustion of reactants minus enthalpy of combustion of products. ये उल्टा हो गया compared to your formation. ये सब हेसेस लॉ का एप्लीकेशन से ही निकल के आता है. हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, पता ही है, ये भी आपको याद रखना है. यहां पे ये यूज कर सकते हो बेसिकली, है ना. एंड दे हैव आस्क्ड यू based on the above thermochemical equations, what is the value of enthalpy of this reaction carbon graphite plus 2H2 giving you CH4. यानी कि enthalpy of formation of methane पूछा हुआ है आपको. ठीक है, तो अब ये specifically we can use this also. What we could say is okay, look at this reaction. तो enthalpy of combustion of graphite हमें मालूम है. Enthalpy of combustion of reactants minus enthalpy of combustion of your products is what you need, right? तो आपके पास enthalpy of combustion of carbon मालूम है, enthalpy of combustion of hydrogen मालूम है, into 2 करना पड़ेगा. यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आपको बैलेंसिंग के हिसाब से, तो ये भी मालूम है. enthalpy of combustion of methane उल्टे रिएक्शन का है, तो ये वाला 890.3 है पर्टिकुलर रिएक्शन का, तो उल्टे रिएक्शन का यानी कि enthalpy of combustion of methane is given as minus 890.3, right? तो ये भी मिल गया, डालो हो जाएगा. enthalpy of combustion of carbon plus 2 times enthalpy of combustion of hydrogen minus enthalpy of combustion of methane will give you the final answer, right? So what will it be? Minus 393.5 minus 2 into 285.8 plus 890.3. This is यूजिंग दिस फॉर्मूला पर से आपके अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करके अगर आपको करना है तो दिस इज द मेथड. अदर वे अराउंड सिंपल डायरेक्ट हेसेस लॉ कैन आल्सो बी यूज्ड हियर. एंथैल्पी हेसेस लॉ क्या है, आप नेट रिएक्शन लिखोगे तो उसका एंथैल्पी विल बी द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल इंडिविजुअल रिएक्शंस. तो ये रिएक्शन से, ये हेसेस लॉ का एप्लीकेशन का फंडा ये होता है, जो भी दिया हुआ रिएक्शंस हैं यूज देम टू कुछ भी जुगाड़ लगा के फाइंड द नेट रिएक्शन दैट इज गिवन टू यू. ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, ये 3 से अगर ये बनाना है तो व्हाट विल आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक 1, आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 2 by 2 एंड आई विल हैव टू डायरेक्टली ऐड 3. समझ में आया? तो व्हाट यू कैन से इज दैट अगर इसका डेल्टा H1 मान ले, इसको डेल्टा H2 मान ले और इसको डेल्टा H3 मान ले, तो व्हाट वी कैन से इज दैट डेल्टा H ऑफ दिस नेट रिएक्शन दैट वी नीड विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 plus 2 times delta H2 plus delta H3. You can understand that is the exact same thing that we got from here also, but yeah, this is also another way of doing it. आपको जैसे करना है कर सकते हो, टाइम में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मेथड से सेम ही आंसर, सेम ही स्पीड से ही मिलने वाला है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, अंडरस्टैंड दिस. अब आप यही चीज को अगर आप एडवांस में डालोगे क्वेश्चन, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, राइट? वहां पे थोड़ा बहुत ऐसे इजीली ऐड करके नेट रिएक्शन मिलने वाला टाइप का नहीं होगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. थियरी रिमेन्स द सेम, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, graph based question है. Consider the reversible isothermal expansion of an ideal gas in a closed system at 2 different temperatures T1 and T2 where T1 is given to be less than T2. ठीक है, correct graphical depiction of the dependence of work on the final volume is. ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम डायरेक्टली उसके साथ तो ग्राफ नहीं प्लॉट हुआ, यहाँ पे वर्क डन का मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ LNV प्लॉट किया हुआ है, राइट? तो नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस. अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये दिया हुआ है आपको
आपको, और रिवर्सिबल भी है, राइट। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला यू नो इज इक्वल टू -2.303, या फिर ln के टर्म, ln ही चल रहा है यहाँ पे, तो लेट्स यूज ln इटसेल्फ। तो यू कैन से दैट दिस शुड बी इक्वल टू -nRT ln V final upon V initial, right? So what they have said is फाइनल वॉल्यूम के टर्म्स में ही बात हो रही है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड की बात है, और आपको T1 T2 दो अलग अलग टेम्परेचर है, तो एक बार तो आपका उस फर्स्ट में अगर देखें तो इट शुड बी इक्वल टू -nRT1 ln V final, राइट, माइनस ln V इनिशियल, राइट। अब यहाँ पे दे हैव सेड दैट दिस इज एक्सपेंशन, राइट। एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव आता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में यही फर्क है, फिजिक्स में पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बिकॉज वी कंसिडर वर्क डन ऑन द सिस्टम टू बी पॉजिटिव, एंड इन फिजिक्स वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव तो आएंगे। अब थिंक अबाउट दिस, इसमें स्लोप का फंडा क्या होगा? इफ आई एम प्लॉटिंग W एज अ फंक्शन ऑफ ln V फाइनल, यू कैन सी दैट द स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, राइट। तो यहां पे T1 इज लेस देन T2, विच मीन्स दैट W जो T1 टेम्परेचर पे है उसका स्लोप कम आना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स कैन वी से हियर, राइट। सो अब इसमें इंटरसेप्ट की भी बात अगर करूं मैं, राइट, तो इफ यू कैन सी, you will see that as far as this next W2 is concerned, you will see that it is equal to -nRT2 ln V final minus ln V initial, right? तो इसमें y इंटरसेप्ट की भी बात करें तो आपका इंटरसेप्ट के एंगल पे भी देखें तो T से ही प्रोपोर्शनल है, वो भी nRT1 ln V initial, nRT2 ln V initial, राइट। अब इसमें मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये नेगेटिव गायब कर देते हैं अपफ्रंट, बिकॉज मैग्नीट्यूड है, हमें पता है ओवरऑल नेगेटिव आने वाला है, तो इसको गायब कर दो, इसको गायब कर दो, राइट। तो मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं अपन, राइट। और V फाइनल V इनिशियल से बड़ा होगा क्योंकि एक्सपेंशन है, तो ऑब्वियसली ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर भी है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके Y इंटरसेप्ट वाले एंगल पे भी, राइट, इसका जो लोअर टेम्परेचर पे है उसका वाई इंटरसेप्ट भी कम आना चाहिए, राइट। तो हियर यू हैव दीज टू एंड यू कैन सी दैट यू कैन प्रोबेबली से दैट, अब देखो यहाँ पे दे हैव शोन अ पॉजिटिव, इन दोनों में लाइक 1 and 2 इज गिवन एज द आंसर, 1 and 2 में से द ओनली थिंग दैट यू कैन सी एज अ डिफरेंस इज दैट वाई इंटरसेप्ट एटलीस्ट इसका पॉजिटिव वाले जोन पे दिया हुआ है, राइट। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप्स हैं, तो ये आपका y है, ये आपका x है, राइट। तो अगर ये y है आपका और ये अगर आपका x है तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी के हिसाब से ये जो चीज है ये आपका ये y इंटरसेप्ट आना चाहिए, राइट। अब ये दोनों नेगेटिव ही होंगे क्योंकि आपके पास -nRT ln V फॉर्मेट है उसका, तो दिस हैड टू बी नेगेटिव, तो 2 इज मोर सेंसिबल देन 1 एज फार एज द फाइनल आंसर इज कंसर्न। थियरेटिकल क्वेश्चन है, you can understand that this will be based on the slope and also on the y-intercept both, right? So ये why is this first given so that they can mislead you, ठीक है, कि आपको एक्सपेक्टेशन तो यही है स्लोप के बेसिस पे मोस्टली, अब ये दोनों तो नहीं है, ऐसे वाली फीलिंग में आप ये हो प्रॉब्ली ये कर दोगे आप, राइट। तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, वी वांट y-intercept टू बी नेगेटिव, ये सब में दैट एरर इज क्लियरली विजिबल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An ideal gas undergoes an isothermal compression from 5 meter cube against a constant external pressure of 4 Newton per meter square. Heat released in this process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminium. If molar heat capacity of aluminium is given as 24 joule per mole per Kelvin, then the temperature of aluminium increases by, right? तो 1 mole ही दिया हुआ है, again मेंस लेवल पे कैलकुलेशन रिलेटिवली सिंपल ही दिया जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखो आइडियल गैस इज अंडरगोइंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो कंप्रेशन के टाइम पे वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन प्लस हीट शुड बी इक्वल टू 0, आइसोथर्मल में डेल्टा ई 0 है, तो आपका हीट और वर्क ऑपोजिट होंगे, राइट। तो इस बार क्या है, आप वर्क कर रहे हो, वर्क डन इज पॉजिटिव, हीट इज नेगेटिव, मतलब हीट इज रिलीज्ड, राइट। हाउ मच हीट इज रिलीज्ड, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि डेल्टा ई 0 है आइसोथर्मल प्रोसेस में। डेल्टा ई के लिए हमेशा आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो, अगेन आई एम गोइंग टू पुट सम फॉर्मूले विच आर नॉट रियली रिलेटेड डायरेक्टली to this question, but I want you to remember them, that's why I'm giving you upfront, right? So delta E के जितने फॉर्मूले हैं, right, at least आइडियल गैस के लिए, right, तो इसके लिए आप बोल सकते हो एक जो फॉर्मूला है वो तो ऑब्वियस है, NCV डेल्टा T। दूसरा जो आप यूज कर सकते हो वो है F/2 NR डेल्टा T,
where f is the number of degrees of freedom, या फिर आप यूज कर सकते हो p final v final minus p initial v initial upon gamma minus 1, where gamma is your cp by cv, right? तो depending upon the number of degrees of freedom you can have different formulae for all of these, but जो भी, right? तो ये जनरल फॉर्मूला तो पता होना चाहिए आपको. यहाँ पे तो टेंशन नहीं है बिकॉज यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा टी जीरो है. इन सब में आप इसको भी एन आर डेल्टा टी डिवाइड बाय गामा माइनस 1 भी लिख सकते हो, वो भी एक अलग तरीका है. इन सब में ही आपको दिख रहा है आइसोथर्मल तो डेल्टा टी जीरो है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है. आइडियल गैसेस के लिए अपन अज्यूम करते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन, राइट? तो यहाँ पे आपका Q प्लस डब्ल्यू इज जीरो, आपका Q आएगा माइनस डब्ल्यू. वर्क डन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? देखो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट तो वी से दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू V फाइनल माइनस V इनिशियल. P एक्सटर्नल दिया हुआ है आपको 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका एक्सपेंशन जो है फ्रॉम 5 मीटर क्यूब, ओके राइट. Yeah, so what you can say here is as far as this work done will be equal to, I think by 5 meter cube था ये क्वेश्चन ओरिजिनली, राइट? बिकॉज अब इन फ्रॉम 5 मीटर क्यूब से तो कोई मतलब स्पेसिफिकली कोई मतलब नहीं निकलता, राइट? आई मीन आपको डेल्टा वी चाहिए, आपको वी फाइनल माइनस वी इनिशियल चाहिए, तो आई गेस दिस वाज बाय, राइट? एन आइडियल गैस अंडरगोस आइसोथर्मल कंप्रेशन बाय 5 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे आपके पास वर्क डन जो है पॉजिटिव है, विच विल बी इक्वल टू 4 into 5 which is equal to 20. 4 into 5 which is equal to 20. राइट? तो 20 जूल इज वॉट यू आर बेसिकली गिवन टू दिस, राइट? एंड आपको चाहिए कि इससे कितना टेम्परेचर चेंज होगा एल्यूमिनियम का, तो NC डेल्टा टी होगा, यहाँ पे मोल के टर्म्स में दिया हुआ है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चेंज दैट यू विल बी सीइंग, राइट? आइडियल गैस अंडरगोस आइसोथर्मल कंप्रेशन बाय 5 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. द हीट रिलीज्ड इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, एंड what they have said is what is the temperature change, right? So you can say NC delta T will be the heat that is associated with it, right? दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास? MS delta T भी है, right? MS delta T भी है, बट यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया हुआ, मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है एज दिस वैल्यू, राइट? सो यू कैन से दैट 20 शुड बी इक्वल टू 1 मोल ही है इंटू 24 इंटू डेल्टा टी. तो आपको डेल्टा टी मिल जाएगा 20 बाई 24. 20 बाई 24 इज एक्चुअली 5 बाई 6. ये यहाँ पे 2 बाई 3 दिया हुआ है. आई गेस ये प्रॉब्ली वॉल्यूम कुछ और था, राइट? तो लेट्स जस्ट मेबी डू अ रिवर्स कैलकुलेशन एंड सी व्हाट वाज द वॉल्यूम चेंज दैट वुड हैव गिवन मी दिस 2 बाई 3. ठीक है, तो लेट्स जस्ट से दैट ओके प्रेशर तो यही है, तो 4 इंटू डेल्टा वी शुड हैव बीन इक्वल टू 24 into 1 into 2 by 3. let's say 2 by 3 फाइनल आंसर उन लोगों ने दे रखा है. तो what you would have seen is okay 8 into 3 मतलब 6, 8 into 2 16 हो गया. तो आपका डेल्टा वी जो है वो 4 आना चाहिए था, राइट? तो ये probably they should have said that okay ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम तक आप कंप्रेस कर रहे हो, तो फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब भी देना चाहिए था. probably somebody typed something wrong, right? जो भी, राइट? तो ये फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब होता तो यू वुड हैव गॉट दिस 2 by 3 केल्विन. तो आई एम गेसिंग दैट इज प्रॉब्ली व्हाट समबडी मिस्ड, राइट? तो 2 भूल गया कोई, जो भी, राइट? तो कंटिन्यूइंग, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग हियर. आपके पास वर्क डन प्लस हीट शुड बी इक्वल टू 0, तो हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो कि अगर ये बाई होता तो 20 होता, तो फिर 20 by 24 वुड हैव बीन द आंसर 5 by 6. बट यहाँ पे आई गेस इट इज फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब, जिस केस में डेल्टा वी आता आपका 4, तो 4 into 4 वुड हैव बीन 16 विच इज इक्वल टू 24 into 2 by 3, राइट? तो आपका आंसर डेल्टा टी आता है 2 by 3 केल्विन. अदरवाइज अगर ये बाई 5 मीटर क्यूब का ही है और ये 2 1 मीटर क्यूब का एंगल नहीं होता, तो योर आंसर शुड हैव बीन 5 by 6 केल्विन. जस्ट कीप दिस इन माइंड, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज इज, ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, राइट. यहाँ पे आपको you have to understand that entropy is a measure of randomness, and wherever you think that number of moles up, like think about this, entropy or randomness is maximum in gases, उससे कम है लिक्विड में और सबसे कम होगा सॉलिड में, और उसमें भी आप जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे और कम होता जाएगा, रैंडमनेस कम होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल भी नहीं है अगर आयनिक भी है, सब्सटेंस भी है, वाइब्रेशनल एनर्जी कम होती जाएगी, जो भी हो रैंडमनेस कम होता जाएगा आप जैसे गैस से लिक्विड से सॉलिड में जाओगे, राइट. तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा अवेलेबल स्पेस मिल रहा है, स्प्रेड आउट होने के लिए मिल रहा है, तो रैंडमनेस बढ़ेगा, राइट. So you might have heard of this. I mean, you take a perfume and you spray it here, right? That spreading all through the room will happen irrespective of somebody else doing anything on it. ठीक है, वो आपको जबरदस्ती मिक्स नहीं कराने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन है जहां पे एंट्रोपी बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई हीट एसोसिएटेड नहीं है और वो ऑटोमेटिकली फैल जाएगा. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दैट दे हैव स्पोकन. अब हमें चाहिए नेगेटिव एंट्रोपी वाली चीजें. नेगेटिव एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी कम होने वाला प्रोसेस चाहिए. डिसोल्यूशन, राइट. डिसोल्यूशन में आप अगर जैसे भी आपके पास अगर मॉलिक्यूल्स के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो रहा है तो यू कैन से दैट, आई मीन आयोडीन भी है, सॉलिड है, तो आप इसको अगर आप फैला दोगे तो द मॉलिक्यूल्स हैव लार्जर स्पेस टू मूव अराउंड, व्हिच मींस दैट द एंट्रोपी इन द सिस्टम इज इंक्रीजिंग. सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 and H2, ये है आपका आंसर वैसे दिया हुआ है, बट फंडा क्या है इसका? योर रिएक्शन इज N2 + 3H2 गिविंग यू 2NH3. अब यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है, डायरेक्ट एरो भी डाल सकते थे, बट हमें पता है कि इक्विलिब्रियम है, तो लेट्स जस्ट डील विथ इट इन दैट वे. तो यहाँ पे यू कैन सी 4 मोल गैस से आपको 2 मोल मिल रहा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीजिंग. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होगा तो रैंडमनेस भी डिक्रीज ही होगा. जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना केओस ज्यादा होगा, उतना रैंडम मूवमेंट ज्यादा होगा. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है तो रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है. दिस इज आवर आंसर. Let's just look at the further things also. So the dissociation of calcium sulfate or breaking down of calcium sulfate into CaO plus SO3. एंट्रोपी बढ़ रहा है. कैसे पता? पहले पूरा का पूरा आपके पास सॉलिड ही था, अब सॉलिड भी है और उसके साथ गैस भी है. तो गैस जहां पे भी आ गया मार्केट में, प्रोडक्ट साइड में, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एंट्रोपी बढ़ाने वाला प्रोसेस ही है. सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, अगेन सेम स्टोरी, आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो भी आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. द रिएक्शन MgO plus C giving you Mg plus CO, for which the delta H of reaction is given as plus 491 kilojoule per mole and delta S is given as 198 joule per Kelvin per mole. The temperature above which the reaction will be feasible is, ठीक है. ये स्पॉन्टेनिटी बेस्ड है, गिब्स एनर्जी वाला पार्ट है. इसमें आपको वो टेबल याद रखना होगा, आपको याद ही होगा मतलब मोस्ट प्रॉब्ली कि क्या क्या केसेस हैं जहां पे आपके पास ये स्पॉन्टेनिटी आ सकती है, राइट. तो हियर द फर्स्ट थिंग इज we introduce the concept called Gibbs energy, right? Gibbs energy delta G या फिर delta G नॉट. अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में सारी चीजें, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है? अगर सॉल्यूशन है तो 1 मोलर हो, गैस है तो 1 बार में हो. अभी का डेफिनेशन 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वैसे 1 बार है अभी का. तो यू कैन से दैट ओके थिंग्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो डेल्टा G नॉट लिखते, बट यहाँ पे लेट्स जस्ट से डेल्टा G, ठीक है. तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट. ये हमें नेगेटिव चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, राइट. तो डेल्टा G जब तक नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा G इक्वल टू 0 मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, डेल्टा G पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, आपको जबरदस्ती कराना पड़ेगा. स्पॉन्टेनिटी इन केमिस्ट्री इज नॉट स्पीड, राइट. जैसे इन जनरल अपन क्या है, स्पॉन्टेनियस जो बोलते हैं वो होता है कि मतलब जो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, राइट. बट केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन विदाउट एन एक्सटर्नल इम्पेटस, जो खुद से चले, राइट. तो एज फार एज दिस, एज लॉन्ग एज डेल्टा G इज नेगेटिव, ठीक है. ये इसका प्रॉब्ली आपको प्रूफ भी पता ही होगा. हाउ डू वी कम अप टू दिस डिफाइनिंग न्यू टर्म G इक्वल टू H माइनस TS. ये बेसिकली व्हेन दिस इज हैपनिंग, right, when delta G is negative, what we see is that delta S of your system plus delta S of your surroundings turns out to be positive. This is the second law, right. This says that any spontaneous process will increase the entropy of the universe. Entropy of the universe क्या है? Entropy of the system plus entropy of the surroundings. अब ये
इस चीज को अपन लिखते हैं डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाई टी, क्योंकि सराउंडिंग्स के लिए डेल्टा एच विल बी नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम, क्योंकि सिस्टम हीट गेन करेगा तो सराउंडिंग लूज करेगा, सिस्टम हीट लूज करेगा तो सराउंडिंग गेन करेगा, तो उल्टा पुल्टा है। तो यू से दैट डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच बाई टी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। उसको रीअरेंज करके हमें मिलता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। इसलिए अपन ये नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में जी, विच वी से इज एच माइनस टी एस। तो अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड टर्न आउट टू बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो हमें ये फीजिबिलिटी चाहिए, यानी कि स्पॉन्टेनियसली चले ये चाहिए, तो हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन ये है, देखो याद रखना, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर है तो हायर टेम्परेचर पे फीजिबल होगा। क्यों? बेसिकली वी नॉर्मली अज्यूम कि डेल्टा एच और डेल्टा एस इज नॉट गोइंग टू चेंज सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस वी अज्यूम टू बी फेयरली कांस्टेंट। तो अगर आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये ह्यूजली नेगेटिव होना पड़ेगा, तब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। वो ह्यूजली नेगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एस तो फिक्स्ड है मोरलेस, तो आपको डेल्टा टी डेल्टा एस अगर बहुत बड़ा वैल्यू बनाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो अगर आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हाई टेम्परेचर पे फीजिबल होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जहां पे ये नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर नेगेटिव है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका डेल्टा एस जो है क्या है, राइट। अगर आपके पास डेल्टा एच नेगेटिव, देख बेसिकली स्पॉन्टेनिटी के लिए दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये वो एनर्जी वाला फैक्टर है कि आपके पास डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो अच्छा है, सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है टाइप का है, तो दैट इज वन फेवरेबल थिंग। डेल्टा एस पॉजिटिव इज ऑल्सो फेवरेबल थिंग। डेल्टा एस पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरली फीजिबल डायरेक्शन। तो डेल्टा एच नेगेटिव और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता। समझ में आया? तो जब तक आपके पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिससे एंट्रोपी भी बढ़ रहा है तो ओवरऑल जो है आपका डेल्टा जी नेगेटिव ही आएगा, तो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास डेल्टा एच पॉजिटिव है जो कि उतना अच्छा नहीं है, एंडोथर्मिक है, हीट इंक्रीज होने वाला डायरेक्शन है, तो वो कब फीजिबल होगा? हाई टेम्परेचर पे फीजिबल होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव निकला और डेल्टा एस नेगेटिव निकला तो कोई स्कोप ही नहीं है, राइट। ये भी पॉजिटिव है, ये डेल्टा एस खुद से नेगेटिव है, एक माइनस तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये सब कुछ ही पॉजिटिव आएगा। तो एक ऐसा एंडोथर्मिक प्रोसेस जो एंट्रोपी भी कम कर दे, उसका तो कोई चांस ही नहीं है, राइट। एटलीस्ट खुद से नहीं होगा, हमें कराना पड़ेगा। जैसे बैटरी, अपन जो रिचार्जेबल बैटरी चार्ज करते हैं, वैसे टाइप का सिचुएशन है मोरलेस, कि आपको फोर्स करना पड़ेगा फ्रॉम योर एंड, इट वोंट बी द स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन, राइट। अब आपके पास यहां पे स्पेसिफिकली डेल्टा एच इज गिवन एज दिस मच एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो गिवन एज पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एटलीस्ट एंट्रोपी तो बढ़ रहा है, तो व्हाट विल बी से, अब ये एंट्रोपी बढ़ रहा है वाला भी आपको दिख रहा होगा एंगल, ये दोनों सॉलिड है, ये गैस है, एक गैस तो प्रोडक्ट तो है, राइट। तो आपके पास एंट्रोपी बढ़ने वाला डायरेक्शन है, ये अपना स्पॉन्टेनियस बनाने में हेल्प कर सकता है। बस कैसे? हाई टेम्परेचर पे। वो टेम्परेचर कहां से मिलेगा आपको? उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट डू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ठीक है, दैट टेम्परेचर वेयर दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो, वो निकाल लो। उसके ऊपर जो है हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर टेम्परेचर है तो ये खींच के टी डेल्टा एस जो है उसको ओवरऑल नेगेटिव कर देगा, राइट। तो ये डेल्टा एच बाई डेल्टा एस निकालो, याद रखना है ये किलो जूल में है और ये जूल में है, तो जो भी, राइट। तो ये 491.1 इंटू 1000 डिवाइड अप बाय 198 आएगा, विच टर्न्स आउट टू बी 2480.3. So the temperature above which this reaction will be feasible will be 2480.3 Kelvin. Let's go to the next question, right? Two blocks of same metal having the same mass and at a temperature T1 and T2 respectively are brought in contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium at constant pressure. The change in entropy for this process is, ठीक है। अब ये क्या है? आपके पास मेटल्स हैं, तो आइडियल गैस वगैरह तो फंडा है नहीं, तो यहाँ पे अपना MsLN वाला फॉर्मूला लगने वाला है, राइट। तो MS की जगह NC भी बोल सकते हो वैसे तो यहाँ पे आपके पास टू ब्लॉक्स हैं, दिया हुआ है, सेम मेटल है, सेम मास है और टेम्परेचर डिफरेंट है T1 एंड T2। इफ यू आर अलाउइंग देम टू अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो व्हाट कैन यू से MS, अब फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? T1 + T2/2, ये आपको पता होगा। वैसे आई एम still going to tell you how. तो आपके पास जो है हीट लॉस्ट बाय वन विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द अदर, तो ms इनटू, राइट, लेट्स से कि
आर्बिट्रली कि T1 इज लेस देन T2, ठीक है। तो T फाइनल माइनस T1 होगा आपका एक बॉडी का हीट गेन किया हुआ, राइट, T1 से जो बढ़ के T फाइनल तक आया, दैट इज ms T2 माइनस ms डेल्टा T बेसिकली, है ना। तो T फाइनल माइनस T1, दिस शुड बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी एंड दैट इज ms इंटू T2 माइनस TF, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे आप, ms कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा T फाइनल इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2, राइट। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑफ दीज आर गोइंग टू बी इवेंचुअली सेम, थर्मल इक्विलिब्रियम बोला हुआ है। तो इंडिविजुअली अब आप इंडिविजुअली दोनों का कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा किस चीज का, आपका एंट्रोपी चेंज का। तो एंट्रोपी चेंज के लिए आई हैव टोल्ड यू ms ln T2 बाई T1, आई मीन स्पेसिफिकली यहाँ पे T2 T1 तो दिया हुआ है, तो लेट्स नॉट यूज दैट। तो आई विल से T फाइनल अपॉन T इनिशियल, ms ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल इज योर एंट्रोपी चेंज फॉर इंडिविजुअली बोथ ऑफ दीज, राइट। तो एक के केस में T फाइनल आपका T1 प्लस T2 बाई 2 है और T1 था इनिशियल टेम्परेचर। दूसरा ऑब्जेक्ट जो हॉटर ऑब्जेक्ट था उसका T फाइनल है T1 प्लस T2 बाई 2 एंड T इनिशियल उसका रहेगा T2, राइट। तो यू सब्स्टिट्यूट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज एंड यू विल एंड अप गेटिंग दिस पर्टिकुलर आंसर। द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू Cp इंटू, Cp क्या है, ये आपका ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी अंडर कांस्टेंट प्रेशर, राइट। सो Cp इज नॉट मोलर हीट कैपेसिटी हियर, ऑब्जेक्ट का हीट कैपेसिटी अंडर कांस्टेंट प्रेशर है, तो बेसिकली ये ही है, राइट। तो ये आपको Cp दिया हुआ है बेसिकली। तो Cp एक वाला जो ऑब्जेक्ट है, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर बढ़ा T1 से T फाइनल तक, उसका एंट्रोपी बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप। दूसरे का एंट्रोपी कम हुआ रहेगा, नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि T1 प्लस T2 बाई 2 T2 आने वाला था उसके। तो आपके पास ये आप लिख सकते हो, एक पहला वाला ऑब्जेक्ट के लिए Cp ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल मतलब T1 प्लस T2 डिवाइड अप बाई 2 और आपके पास T1, ये एक का है। दूसरे का क्या होगा, Cp ln T1 प्लस T2 बाई 2 T2। इन दोनों को आपको ऐड करना है, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा T1 प्लस T2 होल स्क्वायर अपॉन T1 T2 आपको दिख ही रहा है, और 2 भी दिख रहा है, 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, Cp ln T1 प्लस T2 होल स्क्वायर डिवाइड अप बाय 4 T1 T2, राइट। ये है आपका हीट, ये आई एम श्योर T1 प्लस T2 बाई 2 जो फाइनल टेम्परेचर आता है, दैट आई एम श्योर दैट यू ऑलरेडी रिमेंबर। आई मीन ये तो नेचुरली इंस्टिंक्टली याद रहता है लोगों को, बाकी बस आपको ये याद रखना है, डेल्टा इज फॉर अ सॉलिड और अ लिक्विड अंडरगोइंग चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम सम T इनिशियल टू T फाइनल इज गिवन बाय ms ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल। ms की जगह ओवरऑल हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम कैन ऑल्सो बी यूज्ड, यहाँ पे स्पेसिफिकली कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ था, तो दे हैव रिटन इट एज Cp, right? So I hope this is clear. You will be getting the third one as the right answer. Let's go to the next question. Once again, एक graph based question है. The combination of plots which do not represent isothermal expansion of an ideal gases. ठीक है, तो इसमें से दे आर सेइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब में ब्लै 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 दो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली शायद एक से ज्यादा ग्राफ इधर गलत है, राइट। तो लेट्स चेक व्हाट इज देयर, राइट। तो एक तो दिया हुआ है P वर्सेस 1 बाई Vm, राइट। तो मोलर वॉल्यूम है 1 Vm, तो P वर्सेस 1 बाई V, ठीक है। तो P वर्सेस 1 बाई V में व्हाट कैन यू से, PV कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपके पास होता है PVM कांस्टेंट आएगा, राइट। लेकिन हमें ये x y के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये आप v को क्या बोल सकते हो, आपका p यहां पे x है, ठीक है, x इंटू Vm जो है 1 बाई Vm है आपका x, वेट y इंटू, राइट, p इज योर y एक्सिस, तो y इंटू आपको 1 बाई Vm है x, तो Vm क्या होगा 1 बाई x, तो y इंटू 1 बाई x इज बेसिकली अ कांस्टेंट, एंड व्हाट डज दैट टेल यू, y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना पड़ेगा। ये सही है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। दूसरा देखो, राइट, तो दूसरा आपका P वर्सेस V है, ये तो पता ही है आपको क्या है ग्राफ,
P वर्सेस V आएगा आपके पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं है, राइट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, दिस इज ऑब्वियसली मीन्स दैट आपके पास कोई एक ऐसा प्रेशर है जहां पे मोलर वॉल्यूम 0 हो जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल, राइट। तो वो इनफाइनाइट प्रेशर पे ही होना चाहिए था, ये तो डेफिनेटली गलत है, ये तो क्लियर हो गया। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, PV वर्सेस P। PV कांस्टेंट होता है और P आपका वेरी कराते रहो, आप कुछ भी कर लो, राइट। तो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस आ गया, तो ये भी सही है। तो अगर दो गलत है तो ये पक्का ही गलत होगा, ठीक है। बट फिर भी देख लो क्या फंडा है, U वर्सेस VM दिया हुआ है, राइट। तो U क्या है, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी वर्सेस VM। आप जैसे जैसे आपके पास ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आपके पास आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा U हैज टू बी 0, राइट। व्हाट इज दैट, डेल्टा E कैन नॉट चेंज, विच मीन्स दैट ये आपका U कैन नॉट चेंज, बेसिकली डेल्टा U 0 चाहिए, तो ये कांस्टेंट आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत है, ऑलरेडी दिख ही रहा है, उन लोगों ने भी गलती दी, राइट। तो या सो व्हाट कैन यू सी, B एंड D आर बोथ रॉन्ग, सो व्हाट इज द आंसर हियर, C इज द राइट आंसर। क्लियर है। ग्राफ बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेंस लेवल पे, आपके पास काफी आसान भी है कुछ भी टाइप के ग्राफ के क्वेश्चंस देना मेंस लेवल पे। दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू एब्सोल्युटली स्कोर, थोड़ा टाइम दो, राइट। I hope you understood this. This is like the way in which you try to find out what is the XY kind of relation that you can find out, और उसके बेसिस पे आपको सारे ग्राफ्स तो आपको मालूम ही है, तो आपको जैसे भी X और Y में रिलेशन मिलेगा, आपको ग्राफ कैसे होना चाहिए ये पता चल जाना चाहिए, राइट। Let's go to the next question, ठीक है। तो फॉर अ डायटोमिक आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। तो आपके पास एक डायटोमिक आइडियल गैस है क्लोज सिस्टम में, और आपको ये प्लॉट्स में से डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब, तो वंस अगेन आपको एरर वाली चीज चाहिए, ठीक है। तो यहां पे पहला वाला U वर्सेस T, इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, बढ़ रहा है, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, यहां पे एक फटाक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली फेस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, उसके बाद फिर से बढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे एटलीस्ट सो फार, राइट। तो अब सेकंड वाले में देखो, CV एज अ फंक्शन ऑफ V, राइट, इज गिवन एज अ स्ट्रेट लाइन, ये सही है, because Cp and CV, the heat capacities of objects only depend upon temperature, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने आइडियल गैस वाला तो देखा ही है, आइडियल गैस जो बिहेवियर है वहां पे भी से दैट ठीक है, CV शुड बी इक्वल टू F/2R, F इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में भी आई एम श्योर यू नो, आपके पास गैस टाइप पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस में आपके पास आएगा नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 3, राइट, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपके पास डायटोमिक या फिर कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, डायटोमिक या फिर कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपके पास आएंगे 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कोई भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आपके पास आएगा 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। रिमेंबर कि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर नॉट कंसिडर्ड बाय अस, वो एडवांस लेवल पे मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन आएगा। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर कंसिडर करने वाला टेम्परेचर है तो वो क्वेश्चन में ही बताएंगे। रिमेंबर टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन अ मॉलिक्यूल विथ n एटम्स इज 3n, ठीक है। उसमें से आपके ट्रांसलेशनल रोटेशनल तो आपको मालूम ही है, 3n माइनस दीज विल गिव यू दी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वो नहीं आना चाहिए मेंस लेवल पे, बट आ गया तो जस्ट रिमेंबर दिस, number of degrees of freedom, total number of degrees of freedom will be 3n। like for example अगर आपके पास एक मीथेन टाइप का आइटम है तो आपके पास 5 एटम्स हैं इसमें, तो इसमें टोटल जो है 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होने चाहिए, और वो 15 में से एटमैक्स नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो एटमैक्स आपके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं ट्रांसलेशनल रोटेशनल मिला के। तो यहाँ पे -6 करोगे तो 9 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर इन योर CH4 मॉलिक्यूल, राइट। तो ये अगर आ गया तो है यहाँ पे CV is a constant, that CV is a constant when you are looking at its relation to volume, which is true, ये भी ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। CV as a function of temperature, you can see आपके पास constant volume में you know constant volume में आपका heat capacity जो है बढ़ता तो दिख रहा है, फेज चेंज फिर से एक constant है, तो this is also
pretty much okay, but look at the last one, right? तो यहाँ पे आपको Cp as a function of P दिया हुआ है, right? तो ये आपके पास गलत दिया हुआ है, because Cp is shown to be changing with pressure, which is not going to happen. Cv is something that only depends upon the temperature. Cp and Cv would only depend on temperature. If at all वो change होगा तो इसकी temperature change की वजह से, phase change की वजह से change होगा. ऐसे तो नहीं होगा कि प्रेशर चेंज कर दिया और Cp Cv चेंज हो गया, राइट? तो दिस इज द रॉन्ग आंसर हियर. लेट्स लुक एट द next question. For a chemical reaction X giving Y, the standard reaction gives energy depends upon the temperature as delta G naught equal to 120 minus 3 by 8 T. The major component of the reaction mixture at T is, if T equal to this, if T equal to that, if T ऐसे दिया हुआ है, राइट? तो आपके पास ये जो रिएक्शन है इसमें आगे पीछे जा सकते हैं, ये आपको दिख रहा है. आपको फीजिबल डायरेक्शन क्या होगा जहां पे डेल्टा जी नेगेटिव हो. अगर ये रिएक्शन है और फीजिबल है तो आपके पास मेजॉरिटी Y मिलेगा, राइट? आगे जाने की चांसेस ज्यादा है. तो जब डेल्टा जी नेगेटिव है तो ये फीजिबल है तो आपके पास प्रोडक्ट आना चाहिए ज्यादा, ठीक है? तो ये जब भी डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो वील से दिस इज द मेजर थिंग. एंड अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो यानी कि ये नॉन फीजिबल डायरेक्शन है, तो वील से कि एक्स इज द प्रोमिनेंट थिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो यहां पे आपको डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है 120 माइनस 3/8 T, ठीक है? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डेल्टा जी इक्वल टू 0 कौन से टेम्परेचर पे आता है ये देख लो, उसके आगे पीछे जो है फीजिबिलिटी चेंज होती है. तो आपके पास ये इक्वल टू 0 अगर मैं डाल दूं तो मेरे पास T आएगा 120 डिवाइडेड बाई 3/8 विच इज इक्वल टू 320 केल्विन. तो 320 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पे ये रिएक्शन एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पे होगा और आपके पास डेल्टा जी 0 होगा, राइट? तो डेल्टा जी नॉट 0 होगा. इनफैक्ट स्टैंडर्ड कंडीशंस में 1 मोलर लेंगे. स्टैंडर्ड कंडीशंस याद रखना क्या फंडा है, अगर आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा तो स्टैंडर्ड बोलेंगे. गैस इन्वॉल्व है तो 1 बार पे स्टैंडर्ड बोलेंगे. तो ये डेल्टा जी नॉट 0 आ रहा है 320 केल्विन पे, यानी कि अगर मैं 320 केल्विन पे इसका 1 मोलर लूं और इसका 1 मोलर लूं तो खत्म हो गया, वो इक्विलिब्रियम पे होगा, राइट? अब इसके लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा, यू कैन सी कि ये 3/8 T जो है और ये जो डेल्टा जी नॉट है ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है? डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा, इसका क्या मतलब होगा, राइट? आप के के टर्म्स में भी देख सकते हो ऐसे, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT/ln K. तो जहां पे डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है के पॉजिटिव आएगा, के पॉजिटिव आएगा मतलब प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, राइट? तो आपके पास ये जहां पे डेल्टा, अब ये डिफरेंट टेम्परेचर्स देखो, बिलो दिस टेम्परेचर यू कैन सी दैट डेल्टा जी नॉट विल बी पॉजिटिव एंड नॉन फीजिबल, विच मीन्स दैट ये फीजिबल नहीं है का क्या मतलब है कि x ज्यादा होगा, राइट? तो पहले वाले में ही अपना आंसर आ गया, आंसर इज गिवन एज 1, राइट? तो आपका 320 के नीचे ये नॉन फीजिबल डायरेक्शन है, मतलब रिएक्टेंस ज्यादा होगा, तो x will be your major product. The major component of the reaction mixture will be X if the temperature is less than 320, right? Y if the temperature equal to 300, गलत हो गया. X is equal to if temperature is 350, गलत हो गया. 320 के आगे Y will be major. Y if T is equal to 280, ये भी गलत हो गया. समझ में आया? तो this is your right answer. What did we use here? We use spontaneity. What did we did not even go through like delta G naught is equal to minus RT/ln K. K निकालो, K 1 से ज्यादा है तो आप बोलोगे प्रोडक्ट ज्यादा है, K 1 से कम है तो आप बोलोगे कि रिएक्टेंस ज्यादा. वो सब नहीं कर रहे हैं अपन, जस्ट थियोरेटिकली, जस्ट बेस्ड ऑन फीजिबिलिटी यू कुड प्रेडिक्ट दिस, राइट? तो यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा, 320 के नीचे. डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव है मतलब ये नॉन फीजिबल वाला सिचुएशन है, नॉन फीजिबल वाला सिचुएशन मतलब एक्स रिएक्टेंस ज्यादा होंगे. अदर वे अराउंड अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ रहा है विच इज गोइंग टू हैपन अबव 320, तो उस केस में आप बोल सकते हो फीजिबिलिटी वाला सीन है और y आपका ज्यादा आएगा, राइट? लेट्स गो टू some like 2-3-4 questions more random है. I'm just like picking up some of these questions. एक में I just want to cover up all the expansion compression वाले things. I'm pretty sure that you are very comfortable with this, but I'm still going to just quickly go through one example where I'll cover up the expansion compression of ideal gas. तो यहाँ पे expansion का question है. वैसे आपके पास 10 atmosphere 1 liter 300 Kelvin पे एक ideal gas है और monoatomic gas है which is expanded till its volume becomes 4 liters. एंड कैसे
first process that you are undergoing, right, what you are using is reversible isothermal expansion. Simple है तो I'm just going to quickly write down the formula, you can do the calculations. तो आपके पास अब हीट डेल्टा ई डेल्टा एच सब निकालना है हर एक में, तो ये थोड़ा स्टंट होने वाला है, सारे आंसर्स नहीं दिया है मैंने, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, यू कैन अटेम्प्ट ऑन योर ओन. तो आपके पास पहले वाले में जो है, अब देखो यहाँ पे Q डेल्टा ई डेल्टा एच पूछा हुआ है, तो बट वी नो दैट अपने पास W का डायरेक्ट फॉर्मूला है, E का डायरेक्ट डेल्टा ई का डायरेक्ट फॉर्मूला है, Q नहीं होता तो Q अपन क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ यूज करके निकालते हैं, राइट. तो यहाँ पे पहले वाले में आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल भी है, तो अपन डेल्टा ई तो जीरो अपफ्रंट ही बोल दिया, डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो अपफ्रंट बोल दिया. डेल्टा एच क्या है, गामा इंटू डेल्टा ई. याद रखना आइडियल गैस के लिए डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू गामा टाइम्स डेल्टा ई. तो आपको डेल्टा ई पहले वाले में जीरो है, डेल्टा ई दूसरे वाले में भी देखो आपका आइसोथर्मल ही है, तो ये दोनों में तो डेल्टा ई डेल्टा एच दोनों जीरो है, ठीक है. तो डेल्टा ई डेल्टा एच विल बी इक्वल टू जीरो. डेल्टा ई डिवाइड बाय डेल्टा एच नहीं है बाय द वे, डेल्टा ई डेल्टा एच दोनों जीरो है, ये दोनों ही क्वेश्चंस में, ठीक है. पहले वाले में आपको वर्क डन के लिए फॉर्मूला मालूम है, माइनस एनआरटी ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल. एनआरटी की जगह आप पीवी यूज कर सकते हो, आपको स्पेसिफिकली नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया इसलिए बोल रहा हूं मैं, राइट. तो आप माइनस पीवी यूज कर सकते हो एनआरटी की जगह. तो 10 लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट है, लीटर एटमॉस्फेयर पता होना चाहिए आपको, 101.3 जूल, ठीक है. तो ये मालूम होना चाहिए 101.3 जूल. कॉमनली यूज्ड है, ज्यादा लीटर एटमॉस्फेयर में बहुत बार आंसर आता है. ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल. V फाइनल दिया हुआ है 4 है और V इनिशियल दिया हुआ है 1 है, तो ln 4. ln 4 क्या है, 2.303 टाइम्स log 4. log 4 भी मालूम होना चाहिए आपको, 2 log 2 0.6, ठीक है. तो ये जो चीज लिखा हुआ है ये आपका, या फिर ln 2 तो मालूम ही है 0.693, आपने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा. तो ln 4 क्या होगा, 2 टाइम्स ln 2, राइट. तो 0.693 इंटू 2, राइट. वैसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपको 2.303 इंटू 0.6 से करना है तो उससे भी आप निकाल सकते हो. ये 0.6 क्या है, log 4, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो ln 4 मिल जाएगा. ये आपका W है और Q विल बी माइनस W, तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है. तो ये आपका Q आ गया, डेल्टा ई डेल्टा एच दोनों जीरो. दूसरे वाले में आपके पास इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है. इरिवर्सिबल कैसे पता, P एक्सटर्नल दिया हुआ है कि कांस्टेंट है, तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आपको W का सीधा फॉर्मूला मालूम है, माइनस P एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर ही दिया हुआ है, राइट. तो ये आप सीधा बोल सकते हो माइनस 1 एटमॉस्फेयर इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, मतलब 4 - 1 लीटर्स. तो ये आपके पास आया -3 लीटर एटमॉस्फेयर, राइट. तो -3 लीटर एटमॉस्फेयर अगर W है तो Q विल बी इक्वल टू -W विच इज इक्वल टू +3 लीटर एटमॉस्फेयर. जूल में आंसर पूछा हो तो रिमेंबर 101.3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ये जो भी आंसर मिल रहा है, ठीक है. What I'm concerned primarily about in this question, to be honest, is the fourth part. ठीक है, मुझे ये आपका adiabatic जो है, irreversible expansion compression जो है, उसके बारे में ज़्यादा concern है, because a lot of students had asked me about this, right? ये most commonly forgotten part है वैसे, ठीक है, most people just forget how to handle this, but ये वाले specific question में it's easy to handle, but still I am going to tell you about this fourth part in detail, right? अब यहाँ पे आपका थर्ड जो ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है कि यू आर यूजिंग अ रिवर्सिबल adiabatic प्रोसेस, ठीक है. adiabatic प्रोसेस मतलब सी पार्ट में आपके पास adiabatic मतलब Q तो हो गया जीरो सीधा, ठीक है. अब डेल्टा ई डेल्टा एच दोनों आपको चाहिए. डेल्टा एच मिल जाएगा अगर डेल्टा ई है, गामा टाइम्स डेल्टा ई ही करना है डेल्टा एच के लिए. तो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू W, फर्स्ट लॉ से, राइट. और ये दोनों के लिए आप बोल सकते हो कि दिस इज, या तो ये आप बोल सकते हो कि NCV डेल्टा टी NR अपॉन गामा -1 डेल्टा टी, या फिर जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बोला था P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन गामा -1. अब ये आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, गामा आएगा आपके पास 1 + 2/f है, राइट. गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, f is the number of degrees of freedom. मोनो एटॉमिक गैस है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. गामा आएगा 5/3, तो डिनोमिनेटर में आएगा 5/3 - 1, ठीक है, यानी कि 2/3. तो ये ऊपर आएगा तो 3/2 आएगा, तो 3/2 टाइम्स P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, ठीक है. अब ये P फाइनल कहाँ से आएगा, P फाइनल तो नहीं पता हमें,
वी फाइनल पता है 4 लीटर्स हैं, पी इनिशियल वी इनिशियल भी मालूम है, लेकिन पी फाइनल के लिए हम क्या यूज करेंगे, यू नो इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक वी कैन यूज द फॉर्मूला पी वी टू पावर गामा इज अ कांस्टेंट, तो पी इनिशियल इंटू वी इनिशियल टू पावर गामा शुड बी इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल टू पावर गामा। ठीक है, ये याद रखना रिवर्सिबल में ही यूज करना है, हर जगह उठा के पटकना नहीं है, अगले वाले में नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहां पे आएगा पी इनिशियल मालूम है आपको 10 है, 10 इंटू 1 पी इनिशियल टू पावर गामा 5/3 शुड बी इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। अब पी फाइनल आपको मालूम नहीं है, चाहिए लेकिन हमें, क्योंकि इसमें उठा के डालना है, तो ये पी फाइनल इंटू 4 टू पावर 5/3, पी फाइनल मालूम है 4 लीटर्स हैं, तो 4 टू पावर 5/3, तो आपका पी फाइनल क्या आएगा, पी फाइनल इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 नहीं है, 1 टू पावर 5/3 क्या है, 1 नहीं है, तो ये आएगा आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 4 टू पावर 5/3। अब ये 4 टू पावर 5/3 टाइप के आइटम जब आए तो यू शुड यूज लॉग टू गेट द आंसर, राइट। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, लेट्स जस्ट से दैट दिस 10 टू पावर 5/3 इज सम k, 10 डिवाइडेड बाय 4 टू पावर 5/3 इज लेट्स से सम k, तो लॉग ले लो तो क्या मिलेगा, log 10 1, लॉग ले रहा हूं मैं, लॉग a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b। ठीक है, तो log 10 आया 1 माइनस log ऑफ 4 टू पावर 5/3, log ऑफ a टू पावर b क्या है, b log a, तो ये आएगा 5/3 log 4 शुड बी इक्वल टू log k। ठीक है, अब log 4 क्या है 0.6 डिवाइड बाई 3 क्या है 0.2, 5 इंटू 0.2 क्या है 1, 1 माइनस 1 क्या है 0, 0 इक्वल टू log k, मतलब k क्या होगा 1, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 है, राइट। तो आपका p फाइनल जो है 1 आ गया, तो यहां पे उठा के आप वापस डाल दो, तो ये आएगा आपके पास, राइट। तो ये आएगा, ओ गायब हो गया, गायब नहीं होना है, इधर बैठे रहना है, राइट। तो ये आएगा आपके पास 3/2 इंटू पी फाइनल वी फाइनल 1 इंटू 4 लीटर एटमोस्फियर माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल इज 10, तो -6 इंटू 3/2 यानी कि -9 लीटर एटमोस्फियर। एडियाबैटिक है और आपके पास एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव है, डेल्टा ई नेगेटिव है, क्यू आएगा 0। ठीक है, ये था अपना रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाला पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर। पीवी टू पावर गामा से पी फाइनल वी फाइनल में से जो भी मिसिंग है वो चीज उठाओ और फिर डेल्टा ई का सीधा फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा ई इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा -1। इसमें जो भी मिसिंग टर्म है वो पीवी टू पावर गामा से आ जाएगा, प्लग इट इन टू गेट द फाइनल आंसर, राइट। तो यहां पे आया -9 लीटर एटमोस्फियर। नाउ फॉर द लास्ट पार्ट आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ दीज because I need more space in this, right? Okay, so how do you handle this kind of question? Last part is by expanding the gas against a constant external pressure of 1 atmosphere adiabatically. तो ये adiabatic irreversible process है जब भी P external constant है, except of course in isobaric जहाँ पे कांस्टेंट ही है। अदर देन दैट अगर आपके पास जब भी पी एक्सटर्नल कांस्टेंट टाइप्स का कुछ दिखे तो अंडरस्टैंड कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल में पी शुड चेंज विद द एक्सटर्नल प्रेशर, राइट। एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर विल बी चेंजिंग ऑल द टाइम एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम। यहां क्या करोगे तो रिमेंबर दिस इज अ ट्रिक यू हैव टू एब्सोल्युटली रिमेंबर फॉर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। व्हाट इज इट? You equate delta E equal to W. That is the only trick here. What you will say is P final V final minus P initial V initial upon gamma -1 should be minus P external into V final minus V initial. ये आप लिख दो फॉर्मूला, इसमें जो जो चीजें मालूम है उठा के डाल दो, जो जो नहीं मालूम है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। अब यहाँ पे आपको पी फाइनल नहीं मालूम है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे देखो वैसे तो हमें चाहिए था क्यू तो 0 है, डेल्टा ई विच इज सेम एज डब्ल्यू और फिर उसको गामा से मल्टीप्लाई करके डेल्टा एच मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक्चुअली स्पीकिंग उतना टेंशन नहीं है, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एटलीस्ट यहाँ पे सीधा आपके पास आएगा -1 एटमोस्फियर जो कि आपका हाँ ये रहा। तो 1 एटमोस्फियर आपको दिया हुआ है, 1 एटमोस्फियर पी एक्सटर्नल इंटू 4 - 1 लीटर, तो ये आपको -3 लीटर एटमोस्फियर जो है दिख रहा है, राइट। यहाँ पे सीधा आंसर मिल गया। बट लेट्स से कि पी फाइनल भी पूछा हुआ होता तो क्या करते, इसलिए ये बता रहा हूं मैं, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज
ये आपके पास है पूरा का पूरा आइटम। यहां पे बस आपको पी फाइनल नहीं पता, आपको दिख रहा है ये पी फाइनल इज समथिंग दैट इज नॉट नोन टू अस, बाकी सब कुछ मालूम है। तो व्हाट वील से इज 4 टाइम्स पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, वी इनिशियल था 10 डिवाइड बाय गामा -1 यानी कि डिवाइड बाय 2/3 यानी कि इंटू 3/2 शुड बी इक्वल टू -3। इससे आप इधर इसको ले जाओ या तो 3 काट ही दो, इनफैक्ट -2 आएगा। तो 4p फाइनल इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 उस तरफ जाएगा, -2 है तो 10 - 2 मतलब 8 हो गया। तो आपका p फाइनल आया 2 एटमॉस्फेयर। तो ये PV2 पावर गामा नहीं यूज करना है। PV2 पावर गामा के हिसाब से क्या आया था, इफ यू रिमेंबर P फाइनल आया था 1 एटमॉस्फेयर। इस बार आपके पास इरिवर्सिबली P फाइनल आया 2 एटमॉस्फेयर। क्लियर है? तो इरिवर्सिबल में फर्स्ट राइट डाउन दी एक्सप्रेशन डेल्टा E इक्वल टू W। इसमें जो भी चीज मिसिंग चीजें हैं वो आप ढूंढ निकालो, ठीक है। वर्क डन अलोन चाहिए, डेल्टा E अलोन चाहिए, तो आपको कुछ ये सब टेंशन नहीं है। अगर आपको वी फाइनल वी इनिशियल दोनों मालूम है तो सीधा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? रिमेंबर दिस, राइट। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे वी फाइनल दिया हुआ है, उसकी जगह अगर ऐसे बोल दिया होता कि हाँ 1 एटमॉस्फेयर है एंड वी आर अलाउइंग इट टू एक्सपैंड टू वॉट एवर इज पॉसिबल, तो वी फाइनल अगर नहीं दिया हुआ होता तो आपको ये करना पड़ता, ठीक है। अगर ये ऐसे दिया हुआ होता कि 1 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट जहां तक एक्सपैंड हो रहा है होने दो दिया हुआ होता, तो आप बोलते चलो सही है भाई, मुझे पी फाइनल मालूम है 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। वी फाइनल मुझे मालूम नहीं है, पी इनिशियल वी इनिशियल तो मालूम ही है। यहां पे पी एक्सटर्नल भी 1 एटमॉस्फेयर होता, वी फाइनल नहीं मालूम होता, तो एक लीनियर इक्वेशन बन के आता आपके पास वी फाइनल का, जिसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते थे वी फाइनल का। एक बार वी फाइनल मिल गया, उसी को उठा के इसमें वापस डाल दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ work done also, which is same as delta E, so you don't have to calculate it separately. Once you get delta E, which is how much here by the way, -3 atmosphere, right? तो आपके पास डेल्टा H क्या आएगा, डेल्टा H बाकी सब में भी मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया था, आपको बताया ही था, लेकिन क्या करना है, गामा टाइम्स डेल्टा E करना है। तो लास्ट वाले में फॉर एग्जाम्पल क्या आएगा, -3 लीटर एटमॉस्फेयर इंटू 5/3 which is equal to -5 लीटर एटमॉस्फेयर। This would have been your delta H in the last part. Honestly speaking, मुझे ये last part ही करना था, बाकी बस ऐसे ही डाल दिया, just for revision, just in case you don't remember how to handle them, right? Let's go to next question. Using bond enthalpy data given below, estimate the enthalpy of formation of gaseous isoprene. फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और आपको ये बॉन्ड एंथैल्पीज के वैल्यूज दिए हुए हैं। ये एक टिपिकली यूज्ड चीज है गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग दी एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन बाय यूजिंग व्हाट यू कॉल एज बॉन्ड एंथैल्पीज, ठीक है। वैसे तो हेसेस लॉ ही आप यूज कर रहे हो, समवॉट पैरेलल टू, इफ यू रिमेंबर, आपका जैसे बॉर्न हेबर साइकिल यूज करके आप जैसे लैटिस एनर्जी निकालते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम टाइप का आइटम है जो यहाँ पे चल रहा है। आप कुछ भी करके ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, आपको क्या पूछा हुआ है ये याद रखना, यहाँ पे आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा हुआ है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन बताया था मैंने, use the required amount of elements in their standard states, make 1 mole of your required substance, the enthalpy associated with it is what you call as enthalpy of formation. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 कार्बन है और आपके पास दिख रहा है आपको 8 ही है ना, 8 हाइड्रोजन है। तो what you need is enthalpy of this reaction, 5 carbon in graphite phase, solid, I'm just writing it solid by the way, graphite phase plus 4H2 इन गैस फेस, स्टैंडर्ड स्टेट्स में लिखना है सारी चीजों को, गिविंग यू दिस प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ दिस प्रोडक्ट। इसका एंथैल्पी आपको पूछा हुआ है, राइट। इसके लिए आप क्या करने वाले हो, आप बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा यूज करने वाले हो, लेकिन इट गोज अ लिटिल बिट वाया द बॉर्न हेबर साइकिल वाला टाइप का फंडा। इसमें जो एलिमेंट्री स्टेप्स है, इसके अंदर के इन्वॉल्व स्टेप्स हैं, उसको ब्रेक डाउन करोगे, ये ओवरऑल रिएक्शन को एज अ सम ऑफ मेनी 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 इंडिविजुअल स्टेप्स आप लिखोगे पहले। तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करोगे 5 कार्बन एटम्स इन गैस फेज। इसमें आपको क्या लगेगा, सब्लिमेशन।
यहां पे दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन इन ग्राफाइट फेस 718, लेकिन एक मोल के लिए आपके पास क्या है 5, तो यहां पे क्या लगेगा 5 × 718, पॉजिटिव ही है, एंडोथर्मिक है, ऑब्वियसली सब्लिमेशन है, राइट। नेक्स्ट, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं 8 हाइड्रोजन एटम्स में, ठीक है। उसके लिए मुझे 4 मोल H2 तोड़ना है। यहां पे दे हैव गिवन यू द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2। रिमेंबर, दे कुड गिव यू एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2, दे कुड आल्सो गिव यू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H। इन दोनों में फर्क क्या है? ये 1 मोल H2 को तोड़ने का ही एनर्जी है, एटमाइजेशन में 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स बनाने की एनर्जी होती। तो ये बेसिकली जो दिया हुआ है 435, ये है H2 गिविंग यू 2H का, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता हाफ H2 गिविंग यू H का। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता 435 डिवाइडेड बाय 2, तो 217.5 देते हैं वो लोग, ठीक है। यहां पे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2 ही दिया हुआ है 436 सुना हुआ ही है, हाईएस्ट सिंगल बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन का, तो 4 × 435 यहां लगेगा। अब इन दोनों से आपके पास गैस फेस में कार्बन एटम्स आ गए 5 मोल, और 8 मोल आपके पास हाइड्रोजन एटम्स आ गए इन गैस फेस। करना क्या है? बस बॉन्ड बनाना है और प्रोडक्ट बनाना है। अब ये बॉन्ड बनाने वाले एंगल पे आपको यहां पे दिख रहा है कितने कितने क्या क्या बॉन्ड बनाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। हर बॉन्ड पे एनर्जी रिलीज होगा, राइट। और ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके आगे आपके पास CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो व्हाट ऑल बॉन्ड्स आर यू मेकिंग? यू आर मेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से जब आप यहां जाओगे, यू कैन सी काफी सिमिलर टू योर बॉन्ड नेबर साइकिल है। तो यहां पे आपके पास रिलीज होगा -8 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी। समझ में? 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर व्हाट यू मेकिंग, तो 8 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन जितना बॉन्ड एनर्जी जितना रिलीज होगा। दूसरा आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी 2 दिख रहे हैं, तो -2 टाइम्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड एनर्जी। तो ये मैं ब्रैकेट में जो डाल रहा हूं, ठीक है, वो शायद कैमरा में दिखे ही ना, तो गायब करना पड़ेगा थोड़ा और, राइट। तो यहां से यहां की अगर बात करूं मैं, तो क्या क्या एनर्जीज रिलीज होंगे आपके पास? 8 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। -2 टाइम्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रिलीज होगा, 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और बाकी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने? 1 यहां पे दिख रहा है और 1 आपको, राइट, ये दिख रहा है। तो ये 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो -2 टाइम्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो 5 टाइम्स 718 सब्लिमेशन के लिए, 4 टाइम्स 435 8 मोल हाइड्रोजन एटम्स बनाने के लिए, ये दोनों एंडोथर्मिक है, अब्जॉर्प्शन वाला है। बाकी रिलीज वाले एंगल पे 8 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन, 2 टाइम्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड 2 टाइम्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ये ओवरऑल आपको वैल्यू मिल जाएगा। आंसर इज गिवन टू यू हियर, डू योर ओन कैलकुलेशन। नॉनदलेस 102 किलोजूल पर मोल इज द फाइनल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट। बॉन्ड एंथैल्पी के थ्रू एक रिएक्शन का बॉन्ड एनर्जी पता करना आपको बहुत इजीली आना चाहिए, राइट। सो दैट वेरी कॉमनली सीन क्वेश्चन, राइट। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate enthalpy of standard enthalpy at 400 Kelvin for the reaction half N2 plus O2 giving you NO2, given that delta H naught at standard enthalpy at 300 Kelvin is this. ये क्या है? ये Kirchhoff equation based है, ठीक है. Somewhere before when we spoke about delta G naught, I told you कि delta H और delta S जो है बहुत ज़्यादा change नहीं होता. Of course बहुत ज़्यादा change नहीं होता, but change होता तो है with temperature enthalpy भी, and the relationship between enthalpy change and temperature change is given by Kirchhoff equation. What you say is delta H at some temperature T2, कहाँ गया? पेन गायब हो गया, राइट. सो डेल्टा एच एट सम टेम्परेचर T2 माइनस डेल्टा एच एट सम टेम्परेचर T1 इज रिटन टू बी इक्वल टू इज डेल Cp डेल T, ठीक है. दिस इज योर किरचॉफ इक्वेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेल Cp डेल T? डेल Cp इज सम ऑफ Cp ऑफ योर प्रोडक्ट्स minus sum of Cp of your
reactance. तो del Cp is change in Cp basically. आपके पास Cp of all your products minus Cp of all your reactants is what you call as del Cp. तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट क्या है, NO2 है, ठीक है. तो del Cp यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. NO2 का Cp आपको दिया हुआ है कि 35 है, तो 35 माइनस Cp ऑफ योर रिएक्टेंस. तो रिएक्टेंस में आपके पास हाफ मोल N2 है, ठीक है. N2 एक मोल का Cp जो है वो पर मोल आपको दिया हुआ है 30 है, तो हाफ मोल के लिए क्या आएगा 15, हाफ इंटू 30. फिर O2 का एक मोल ही है, तो आप क्या बोलोगे, O2 के लिए दिया हुआ है 30 है वंस अगेन, तो माइनस 30. दिस इज द del Cp हियर. del Cp is sum of Cp of your products minus sum of Cp of your reactants. प्रोडक्ट एक ही था NO2 35, बाकी आपके पास N2 O2 दोनों का 30 दिया हुआ था, तो हाफ N2 के हिसाब से 15 कर दिया और O2 का 30 ही ले लिया, तो 35 माइनस 15 माइनस 30 मतलब माइनस 10 हो गया, ठीक है. तो del Cp is माइनस 10 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर मोल पर केल्विन. और del T आपको मालूम है 100 है, 400 पे कितना है ये पूछा हुआ है, 300 पे वैल्यू दिया हुआ है, तो आप बोलोगे डेल्टा H नॉट एट 400 केल्विन विल बी इक्वल टू, उस तरफ ले जाओ है ना, तो डेल्टा H नॉट एट 300 केल्विन प्लस del Cp तो नेगेटिव ही है माइनस 10 इंटू del T क्या है, del T इज T2 माइनस T1 ऑफ कोर्स. तो ये आएगा यहाँ पे इसको एक्सटेंड में 100, तो 100. तो ये बेसिकली 1 किलो जूल है, राइट. तो डेल्टा H नॉट है 300 माइनस 1 किलो जूल, तो डेल्टा H नॉट है 300 इज ऑलरेडी गिवन एज माइनस 35, तो डेल्टा H एट 400 क्या आएगा माइनस 35 माइनस 1, राइट. तो माइनस 36 किलो जूल पर मोल. क्लियर है. तो यू आर फाइंडिंग delta H at some other temperature using what you call as Kirchhoff equation. अब यहाँ पे you can see कि बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क तो नहीं है, 35 से 36 क्या है, ठीक है. तो that is why you say कि delta H can be assumed to be fairly constant in a particular temperature range. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे तो शायद फ़र्क दिखने लग जाए, अदरवाइज मोर और लेस बॉल पार्क सेम फिगर्स ही है मोर और लेस, ठीक है. कहाँ गया, ये रहा, इधर है, हर बार अलग अलग लिखा मैं. हाँ, फॉर एन आइडियल गैस Cp इज गिवन एज 2.5 R. कैलकुलेट, हाँ Cp क्या है, Cv प्लस R, तो Cv क्या है 1.5 R, और Cv होता क्या है, Cv होता है F/2R. तो आपका F जो है यहाँ पे बेसिकली आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 दिया हुआ है, तो ये मोनो एटॉमिक गैस है, दिख गया हुआ है ना. तो आपका Cp 2.5 है, तो Cv आया Cp माइनस R विच इज इक्वल टू 1.5 R विच इज इक्वल टू F/2R. इससे मैंने बोला कि ये मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है. अब आगे कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी suffered by 3 moles of gas on being heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure and constant volume. इसके लिए वो आपको सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला बताया था, आपका जनरल फॉर्मूला होता है NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1. ये हर जगह आप यूज कर सकते हो, ठीक है. अगर कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है, तो यू नो कि V2/V1, V एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ. तो V2/V1 T2/T1 ही हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर में, जो कि आपका A पार्ट है. तो A पार्ट में आप इससे देख सकते हो कि आपके पास आएगा ln T2/T1 ln T2/T1 सेम ही है, कॉमन आ गया, तो N इंटू CV प्लस R इंटू ln V2/V1, मतलब CV प्लस R क्या है, CP होता है, तो NCP ln T2/T1. ये एक तरीका है, मतलब जबरदस्ती मुझे ये इक्वेशन यूज करना था इसलिए मैंने बताया, वरना तो पता ही है सीधा क्या है, dq/t से आप कर सकते हो इंटीग्रेशन dq/t, और कांस्टेंट प्रेशर में हमें मालूम है कि dq विल बी इक्वल टू NCP dt. तो dq/t का इंटीग्रेशन मतलब NCP dt/t का इंटीग्रेशन, जो कि NCP ln T2/T1 वैसे भी आ सकता था, ठीक है. तो ये याद ही रख रहे हो, वैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये याद ही रहता है. तो आपके पास आएगा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, क्या 3 मोल्स दिया हुआ है, 3 इंटू 2.5 R इंटू ln T2/T1 क्या आएगा, 600/300 हो गया 2, तो ये ln
2, जो कि आपका पहला आंसर है 7.5 R ln T2/T1 विच इज ln 2, राइट। और दूसरा वाला जो है कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आप ये वाले फॉर्मूले में देख सकते हो V2/V1 जो है ऑब्वियसली 1 आएगा, तो ln1 0 आएगा, तो ये वाला टर्म जो है 0 आएगा, तो आपके B वाले में बस NCV ln T2/T1 बचेगा, तो आपके पास आएगा 3 इंटू CV, बताया था मैंने आपको 1.5 R है CP माइनस R से, तो इंटू 1.5 R इंटू ln2 जो कि 4.5 ln2 है, राइट। दिस इज योर CP and CV का फॉर्मूला। दिस इज लाइक फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस वाला भी हमने देखा, फेस चेंज वाला भी देखा, सॉलिड लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर T1 से T2 वाला भी देखा। Primarily these are the ones that would be useful as far as your mains is concerned, right? So more or less we have seen almost all type of questions that you come across in your thermodynamics. Maybe like something that I might have not been able to touch upon is like liquid को आप पकड़ के compress expand वगैरह करने की कोशिश करोगे, या फिर एक solid को आप compress expand वगैरह करने की कोशिश करोगे, तो work done और heat और वो सब कैसे आएगा। तो उसके लिए you just remember that work done is minus P external into V final minus V initial, उससे सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। सो दिस वाज योर thermodynamics session. This is like the last session that I am taking in sprint for mains this time. I hope you had fun with this. Thermodynamics is like the single most important chapter as far as JEE is concerned. एक तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में आता है, और इन जनरल भी thermodynamics is something that is highly useful in many other chapters as well. आपको पता ही है ये, इससे आपका equilibrium chapter is directly coming out of thermodynamics. आप डेल्टा जी यूज करके ही equilibrium chapter पे जाते हो। इक्विलिब्रियम सेपरेटली पढ़ते हैं अपन, है वो अलग बात है, बट एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, हेवी इंपॉर्टेंस वाइज हेवी, कॉन्ट्रीब्यूशन वाइज हेवी, सिंगल मोस्ट हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर होगा मेरे हिसाब से ये आपका, एक आध ऑर्गेनिक के चैप्टर को छोड़ के ये प्रॉब्ली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन केमिस्ट्री, इन JEE ओवरऑल, राइट। Best of luck. I hope you had fun with the questions. Attempt as many questions as possible. Once again, I'm telling you, get yourself exposed to all kind of such questions that you can, right? Solved examples attempt करते रहो. If you are not really looking at mains, I would suggest कि आप advanced के level के questions करना शुरू करो. I've just introduced you to most of the basic equations that are there, most of the basic concepts that are there. If you have any more doubts, you can always reach out to us in Vedantu. You have your Vedantu Doubts app, which is like very useful when you are trying to solve these. I would suggest कि throw all the questions at us. Whenever you don't get something, just throw it at us. We'll handle it for you. ठीक है? So we are here for you because we are Vedantu, and we are here for all the students that we can come across, right? Best of luck, students. See you again when we are preparing for the advanced. Bye.